Good morning, students. How are you all? Hope you all are good and safe at your home. As it is the beginning of new class and new session, so all the very best to all of you. बच्चे, today we will start with the supplementary reader book that is named Moments of class 9th. This book contains 10 chapters. All these 10 chapters are very interesting. You will enjoy reading all these chapters, and the very important thing is that you will learn and something from all these chapters. These chapters are interesting as well as all contains a deep message behind it. So today we are going to start with our first chapter, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Let us see the chapter, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Before we start this chapter, we should know about the writer of the chapter, Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was born on 12th December 1904 and he died on 28th September 2004. He was an Indian writer in English. He was an Indian writer in English who devoted his entire life in describing the woes, plights, and miseries of the underdogs of Indian society. The present story is an extract from his book, The Lost Child and Two Lyrical Stories. It is an extract from the book, The Lost Child and Two Lyrical Stories. So let us see what is in the chapter. Chapter name is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand, who was an Indian writer, and it is an extract from The Lost Child and Two Lyrical Stories. Before we read, let us see what this chapter is all about. What we will read in it: a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक बच्चा गोज़ टू फेयर, जो फेयर पे जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वो बहुत ही खुश है और एक्साइटेड है. उसे स्वीट्स चाहिए, टॉयज़ चाहिए, जो भी वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे थे. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, पर उसके पेरेंट्स वो सब उसके लिए नहीं परचेज़ कर रहे थे, उसे वो सब नहीं दिलवा रहे थे. देयर मे बी सम रीजन्स वाई देयर पेरेंट्स वर नॉट बाइंग एवरीथिंग फॉर हिम. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ when someone else offered them to him? See, this we will see at the end of the story. All things that he wanted earlier, he was very excited, he was very happy, and he wanted sweets and toys, but his parents was denying him. But what happened that he started refusing when someone else offered him all these things. जब किसी और ने उसे ये सब चीज़ें ऑफ़र की, तब वो उनको नहीं लेना चाह रहा था. इसके पीछे क्या रीज़न है? दिस वी विल रीड इन दिस चैप्टर. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. I have written the meaning of tough words for you. Let us see. It was a festival. एक फेस्टिवल चल रहा था स्प्रिंग का.
मीन्स स्प्रिंग सीज़न था, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और ना ही बहुत गर्मी थी। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, विंटर सीजन जा चुका था, अब क्या हो रहा था, नैरो जो लेन्स थी, लेन्स मीन्स होते हैं स्ट्रीट्स, एंड एलेज, एले मीन्स होता है नैरो पैसेजेस, जो नैरो पैसेज थे, जो छोटी छोटी गलियां थी, एमर्ज्ड, एमर्ज्ड मीन्स होता है केम आउट, उनमें से आ रहे थे। अ गैले क्लैड ह्यूमैनिटी, गैली मीन्स विद जॉय और विद हैप्पीनेस, क्लैड हेयर मीन्स क्लॉथड और ड्रेस्ड, बहुत ही खुशी के साथ ड्रेसअप हुए हुए, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी हेयर मीन्स ह्यूमन बींग्स। क्या कह रहा है पोइट यहाँ पे, विंटर के सीज़न एंड हो चुका था, विंटरी शेड्स जो ख़त्म हो गई थी और स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया था। नैरो लेन्स और एले में से बहुत ही हैप्पीली क्लॉथड जो ह्यूमन बींग्स थे वो बाहर आ रहे थे। कैसे आ रहे थे वो बाहर, सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल के आ रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग अपने हॉर्सेस पे थे, अदर्स सैट, कुछ लोग दूसरे लोग बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, बीइंग कैरिड इन बैम्बू, बैम्बू के जो वो कैरेज वगैरह होते थे उनमें बैठ के वो आ रहे थे, एंड बुल्लक कार्ट, कुछ लोग बुल्लक कार्ट में बैठे आ रहे थे। वन लिटिल बॉय, अब उनमें से और कौन था, एक लिटिल बॉय रैन बिटवीन, जो कि भाग रहा था, हिज फादर्स लेग्स, अपने फादर्स की लेग्स के बीच में, ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग हेयर मीन्स, ब्रिम का क्या मीनिंग होता है बेटे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्लास, we pour something in this glass and it is full up to the mouth, and if we will pour something more inside it, it will brim out, अगर हम इसमें और कुछ डालेंगे तो जो भी लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिमिंग ओवर का मतलब है फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वेरी हैप्पी। वो जो बच्चा था, बिकॉज ही वॉज गोइंग इन द फेयर, तो वो बहुत ही खुश था, विद लाइफ एंड लाफ्टर, हेयर लाइफ एंड लाफ्टर मीन्स हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, वो फुल ऑफ हैप्पीनेस और फुल ऑफ लाफ्टर था। सी दिस पिक्चर, यू कैन सी हेयर मैरी गो राउंड, हेयर बलून्स, हेयर a couple, father, mother and the boy. This story all revolves around this boy. Let us see the next. Come child, come, called his parents as he lagged behind. Come child, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने बुलाया, एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि लैग्ड यहाँ पे मीनिंग है रिमेन्ड, वो पीछे रह जाता था। क्यों पीछे रह जाता था, क्यों वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं चल पाता था, लेट अस सी, बिकॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। कभी भी हम फेयर पे जाते हैं, देखते हैं ना एक लाइन में सब जो टॉयज शॉप्स होती हैं वो लगी होती हैं, तो बच्चों को तो वही चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो फैसिनेट हो रहा था, फैसिनेट हेयर मीन्स अट्रैक्ट हो रहा था, बाय द टॉयज इन द शॉप, टॉयज से जो शॉप्स में थे, दैट लाइंड द वे, जो सारे रास्ते में एक लाइन में लगे हुए थे। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो फटाफट भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर हैं वो तो ओबीडियंट हैं टू देयर कॉल, अपने पेरेंट्स की कॉल पे, यानी जैसे ही वो उसके पेरेंट्स बुलाते हैं वो उनकी आवाज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे चलना शुरू कर देता है। बट हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी जो आइज़ हैं वो अभी भी लिंगर कर रही हैं, लिंगर मीन्स होवर कर रही हैं, मंडरा रही हैं, या फिर रिमेनिंग बिहाइंड, अभी भी उसकी आइज़ पीछे ही हैं ऑन रिसीडिंग टॉयज़, उन टॉयज़ की तरफ जो कि डिसअपीयर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा आगे जा रहा है वो टॉयज़ वहाँ से डिसअपीयर होते जा रहे हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही
couldn't suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. As he came, जब उसके पेरेंट्स बुलाते हैं वो पहुंच जाता है टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, और वो वहाँ उनकी वेट कर रहे थे. ही कुडंट सप्रेस द डिज़ायर, वो अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा को सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया, ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल की जो इच्छा थी. इवन दो, हालांकि, ही वेल न्यू, वो बहुत अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, ओल्ड पहली पुरानी, कोल्ड मीन्स फीलिंगलेस, स्टेयर जो घूर थी, ऑफ रिफ्यूज़ल जिसका मतलब था नहीं, इन देयर आइज़ अपने पेरेंट्स की आइज़ में. यहाँ पे क्या है इसका मतलब बेटे, वो चाहता तो बहुत कुछ था फेयर से लेना, पर उसे पता था उसके जो पेरेंट्स हैं उसको एक कोल्ड स्टेयर देंगे जिसका मतलब होगा रिफ्यूज़, मतलब वो उसको वो चीज़ नहीं दिलवाने वाले. फिर भी वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीडिड हेयर मीन्स रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स को कि मुझे वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर उसे देखते हैं रेड आइड मतलब लाल आंखों से, पूरे गुस्से के साथ. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अपने वही फैमिलियर जैसे कि उसके फादर की हैबिट है. टायरेंट पर्सन वो होता है जो किसी बहुत ही क्रूअल नेचर का होता है और जो हर किसी को दबा के रखता है. उसके फादर उसी वे से उसकी तरफ देखते हैं. बट हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी जो मदर हैं वो मेल्ट हो जाती हैं फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन की फ्री स्पिरिट से. फ्री स्पिरिट यानी कि जो इतना अच्छा दिन था कि वो लोग फेयर में आए हुए थे, तो उसकी मदर को लगता है कि आज इसको डांट नहीं पड़नी चाहिए. ऑफ द डे वॉज टेंडर, वो प्यार से भर जाती हैं. एंड गिविंग हिम हर फिंगर, वो अपनी फिंगर अपने बच्चे को देती है. टू होल्ड, वो उसकी अपनी मदर की फिंगर पकड़ता है. सेड, वो क्या कहती है अपने बेटे को, लुक चाइल्ड वट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे आगे क्या है. वट इज़ बिफोर यू. इट वॉज, क्या था वहाँ पे, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक मस्टर्ड का, सरसों का खेत था जहाँ पे फ्लावर्स हुए थे. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो पेल पीले रंग के थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि सोना वहाँ पे मेल्ट हुआ है. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, और वो बह गया है कई मील्स तक. एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ऐसे लग रहा था जब हम सरसों के खेत देखते हैं ना तो दूर दूर तक ये लगता है जैसे कोई पीले रंग की चद्दर बिछी हो, और यहाँ पे वो इतने शाइन कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कितनी माइल्स और माइल्स तक दूर कोई गोल्ड जो है वो मेल्ट करके बिखरा हुआ है. A group of dragonflies were buzzing about on their gaudy purple wings. एक ग्रुप जो था ड्रैगन फ्लाइज का, वह बजलिंग मतलब होते हैं मूविंग बिजीली विद एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ वो इधर उधर मूव कर रहे थे. ऑन देयर गोडी मीन्स होते हैं शोई, ब्राइट, जो देखते ही एकदम चमकदार हो और आंखों को अट्रैक्ट करे. पर्पल विंग्स, उनके पर्पल कलर के विंग्स थे. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, वो इंटरसेप्ट कर रहे थे, बीच में वो दखल अंदाजी कर रहे थे. द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, वहाँ पे जो ब्लैक बीज थी और जो बटरफ्लाइज थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, वो स्वीटनेस सर्च कर रही थी फ्लावर्स में से. उनको ये जो ड्रैगन फ्लाइज थी बीच में वो इंटरसेप्ट कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो खेल रहे थे. द चाइल्ड फॉलोड दैम, चाइल्ड उनको फॉलो करने लगा. इन द एयर में, वो जो बटरफ्लाइज वहाँ पे फ्लाई कर रही थी, जो ड्रैगन फ्लाइज फ्लाई कर रही थी, वो उनको लगातार गेज कर रहा था और उनके पीछे पीछे भाग रहा था. टिल वन ऑफ देम, तब तक वो उनके पीछे भागता रहा. वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक कि उनमें से कोई अपने विंग्स को स्टिल नहीं कर लेती थी, यानी उड़ना बंद नहीं कर देती थी. एंड रेस्ट, वो रेस्ट करने के लिए नहीं बैठ जाती थी. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो
उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। वो चली जाती थी, जब वो जैसे ही वो उनको पकड़ना चाहता था वो फ्लटर करती हुई, फ्लैप करती हुई। फ्लटर और जो फ्लैपिंग है, ये जो बटरफ्लाइज के विंग्स की वॉइस होती है उसे हम कहते हैं अप इनटू द एयर। वो ऊपर हवा में चली गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो ऑलमोस्ट उनको पकड़ने ही वाला होता था तो इतने में वो फ्लटर और फ्लैप करती हुई उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव आ कॉइजनरी कॉल, तब उनकी मदर एक कॉइजनरी कॉल देती है उसे, क्योंकि वो बार बार पीछे रह जाता था। कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, अब क्योंकि वो फील्ड्स में था तो उसकी मदर उसे कहती है कि अब तुम फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. वो भागता है अपने पेरेंट्स की तरफ गैली हैप्पीली, एंड वॉकड अब्रेस्ट, अब्रेस्ट मीन्स है साइड बाय साइड। वो अपने पेरेंट्स के साइड बाय साइड चलता है, यानी तीनों अब एक साथ ही चल रहे थे। being however soon left behind because he was attracted by everything in the fair, क्योंकि फेयर में वो हर एक चीज़ के लिए अट्रैक्ट होता था। तो वो फिर से, पहले तो वो उनके साइड बाय साइड चल रहा था, अब वो फिर से पीछे रह गया था। अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, अब वो किस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया था? लिटल इंसेक्ट्स से, छोटे छोटे जो वहाँ पे इंसेक्ट्स थे और वॉर्म्स थे। बच्चे जस्ट सी and note down every point because you will get question answers from these. Along the footpath, फुटपाथ के साथ साथ that were teeming, teeming होते हैं to pour, means बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर आना, teeming out from their hiding places। अब वो जो worms थे और insects थे, अपने छुपे हुए जो places थे उनमें से वो बाहर आ रहे थे। क्यों? टू एन्जॉय द सनशाइन, सनशाइन को एन्जॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव, ग्रूव हेयर मीन्स द ग्रुप ऑफ ट्रीज। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव, ग्रूव्स की शेड में से। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, जहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। ऑन द एज ऑफ द वेल, वेल के यहाँ किनारे पे जो बैठने का स्पेस होता है वहाँ पे वो लोग बैठ गए थे। ही रैन टुवार्ड्स देम, वो उनकी तरफ भागता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव। अब देखिए स्प्रिंग का सीज़न था, जो फ्लावर्स हैं वो भी गिरना शुरू हो गए थे। तो जैसे ही वो बच्चा उस ग्रूव में एंटर करता है, पेड़ों के ग्रुप में एंटर करता है, तो जो यंग फ्लावर्स थे, छोटे छोटे जो फूल थे, वो शावर की तरह यानी उसके ऊपर गिरने लग गए थे छोटे बच्चे पे, जैसे ही उसने एंटर किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो भूल गया कि उसके पेरेंट्स ने उन्हें बुलाया है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, यहाँ पे रेनिंग पेटल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि पेटल्स जो पंखुड़ियाँ थी फूलों की वो ऐसे गिर रही थी जैसे बारिश हो रही हो। इन हिज हैंड्स बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड, अब देखिए क्या हुआ। जब वो पेटल्स कलेक्ट कर रहा था उसने सुनी कूइंग ऑफ डव्स। डव्स जो है, डव एक बर्ड है, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे, वो उसकी डव की जो साउंड होती है उसे हम कूइंग कहते हैं। उसने डव्स की कूइंग को सुना एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, शाउटिंग चिल्लाता हुआ, क्योंकि बच्चा जो उसने पहली बार डव देखे होंगे मे बी, वो एक्साइटेड हो गया, वो अपने पेरेंट्स के पास गया। द डव, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब वो भूल गया था कि वो पेटल्स को कलेक्ट कर रहा था। उसने क्या किया, वो डव को देख के भागा। जो रेनिंग पेटल्स थी वो जो हैंड्स में कलेक्ट कर रहा था, ड्रॉप्ड गिर गई थी फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके फॉरगॉटन हैंड्स में से। फॉरगॉटन हैंड्स क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि वो भूल गया था कि वो कलेक्ट कर रहा है पेटल्स को। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को फिर से बुलाया, इधर आओ बच्चे। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब उन्होंने बच्चे को बुलाया, who had now gone running, अब वो आ रहा था भागता हुआ, in wild capers, wild capers का यहाँ पे मतलब है
विद प्लेफुल मोमेंट्स, जब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, वो मतलब उछलते कूदते हुए चलते हैं, उसे यहाँ पे कहा गया वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री। वो बनियन ट्री के चारों तरफ उछलता कूदता भाग रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, अब उन्होंने अपने बच्चे को लिया। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, अब उन्होंने नैरो जो एक भीड़ा सा वाइंडिंग फुटपाथ, यहाँ जहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है, उस फुटपाथ पे वो गए। विच लेड टू द फेयर, जो फेयर की तरफ जाता था। थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड में से होते हुए। नेक्स्ट वी विल सी इन द सेकेंड पार्ट। टिल देन रीड all this explanation, and if you have any doubt then you can comment. Thank you.